Hello kids, how are you all? Hope you are fine and safe too. So kids, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? So we have learned about the Vasco da Gama and the established of Portugal rule and end of Portugal rule, right? Till that we have learned in the last video, right? Now today our topic is the Dutch. Fine. Now we will learn something about the Dutch. After the 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now in the Netherlands, came to India for trading. Initially, they established fort at Pulicat and Madras, now Chennai. They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. फाइन. फिर कौन आए? तो डच आए. फिर उन्होंने भी क्या स्टार्ट किया? ट्रेडिंग स्टार्ट किया. ठीक है. पुलिकेट मद्रास में इस्टाब्लिश किए उनके फोर्ट्स वगैरह एंड ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट किया. फिर ब्रिटिश को भी ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया. ब्रिटिश भी आए, उनको भी जानकारी वगैरह मिली और उन्होंने भी क्या कर डाला कि भाई स्टार्ट कर डाला ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पे. बट क्या हुआ कि ब्रिटिश के सामने डच जो थे वो खड़े रह नहीं पाए कंपटीशन में. अभी ब्रिटिश जो थे उनका इंटरेस्ट इंडिया में कैसे बढ़ा वो हम पढ़ते हैं. फाइन. सो द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया during the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE. I'm again repeating the years because you can remember this year easily. Fine. During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608. Captain Hawkins, W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set a foot in India. He met Jahangir but did not get the permission to trade. Then after, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. Later, Delhi went into the hands of Shah Jahan. Shah Jahan gave the permission to the British to carry out trade in Bengal. Fine. फिर क्या हुआ कि कौन से पीरियड में रीजन में? तो क्वीन एलिजाबेथ के रीजन में 1600 सीई में ब्रिटिश ने अपनी क्या की? ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टाब्लिश्ड की. फाइन. क्योंकि उनको क्या चाहिए था? वेल्थ इंक्रीज करनी थी. पैसा ही पैसा उनको इंक्रीज करना था. फिर फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड ही सूरत में in the year 1608 CE. The year is 1608 CE. The first ship arrived in the India in the port of Surat in the year 1608 CE. Fine. Remember the years. That's why I'm again and again repeating. Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first to set the foot in India. वो जो पहले कैप्टन थे उन्होंने अपना पैर इंडिया में रखा. फाइन. फिर वो किससे मिले? तो वो जहांगीर से मिले. जहांगीर से उनको ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिली. उसके बाद क्या हुआ? कौन से आए? सर थॉमस रॉय. वो अराइव्ड हुए और उन्होंने क्या किया? परमिशन ली टू इस्टाब्लिश द ट्रेडिंग इन द सेंटर इन सूरत. और उन्होंने फिर से परमिशन ली. और एट दैट टाइम दिल्ली पर रूल कौन कर रहे थे? किसके हाथ में चला गया था? तो शाहजहां के हाथ में चला गया था. जब सर थॉमस रॉय आए तब तो शाहजहां ने क्या किया? उनको परमिशन दी टू ट्रेड इन बंगाल. फिर ब्रिटिशर ने स्टार्ट किया अपना ट्रेडिंग. कहाँ? तो बंगाल में. The French established the French East India Company in the year 1664 CE.
In the year 1664 CE, the French established the French East India Company. They established factory in Surat, Machilipatnam, and Pondicherry. The hand of the French company was Joseph Francisco Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India. Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. There were innumerable disputes and battles, and finally, the British emerged as the winner. However, the French retained their control over the trading center of Pondicherry, माहे एंड चंद्रनगर. फिर फ्रेंच ने क्या किया? तो फ्रेंच ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की? इस्टाब्लिश्ड की. कहाँ? फैक्ट्रीज इस्टाब्लिश्ड की सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी में. फिर पर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में फाइट्स वगैरह होती रहती थी क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थे, पर ब्रिटिश के सामने उनकी एक ना चली. एंड फ्रेंच ने कंट्रोल किया ट्रेडिंग सेंटर पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर तक ही. ठीक है, तो ब्रिटिश ने उनको भी नहीं बेर किया और कहीं ना कहीं उनको भी जाने का रास्ता दिखा दिया, या फिर जो उनका ट्रेडिंग वगैरह जो चलता था उनकी उनको लिमिटेशंस दिखा दी. फाइन. देन ब्रिटिश रूल इन बंगाल. अब ब्रिटिश का जो रूल था, ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो बंगाल में कैसे हुआ? द ब्रिटिश first started their trade on the bank of river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. Their forts were garrisoned for the protection of the factory and got the permission from Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying tax against an annual payment. उन्होंने क्या किया कि अपने जो फोर्ट्स थे वो कहाँ किए? बंगाल में इस्टाब्लिश्ड किए. कहाँ पे? रिवर हुगली. ठीक है, नियर बाय द ट्रेड ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश देयर फोर्ट्स. राइट. देन आफ्टर उन्होंने कौन से किंग से परमिशन ली? तो उन्होंने किंग औरंगजेब से परमिशन ली कि हम लोग टैक्स पे करे बगैर यहाँ पे क्या करें? ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें विथआउट पेइंग टैक्स अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट. फाइन. देखो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, द शिप्स ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर फोर्ट्स किस तरह से आती थी और किस तरह से वर्किंग वगैरह चालू होता था. यू कैन सी दिस पिक्चर हियर. नाउ लुक एट दिस मैप ऑल्सो. ये मैप में आपको पहले भी मैंने बताया था कि एक्सपांशन धीरे धीरे कैसे होने लगा. जो येलो है उसमें देखो लोकल रूल था और जो ब्लू है वो ब्रिटिश रूल था. अभी आप ईयर के गैप में देख सकते हो कि ईयर के गैप में कितने कैसे कैसे ब्रिटिश ने अपना जो पाँव होता था वो रख दिए और जमा दिया अपना रूल. यू कैन सी दिस picture in the year 1797, in the year 1840 and in the year 1857. येलो कम होता जा रहा है, ब्लू बढ़ता जा रहा है. सी है ना. तो इस तरह से वो क्या करने लगे? अपना जो एक्सपांशन था वो बढ़ाने लगे रूलिंग का. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the tax as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced in terms of opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Qali Khan. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. After Ali Vardi Khan, his son Sirajuddaulah took a charge. He got involved into a major battle with the British. अभी क्या होने लगा कि उन्होंने क्या किया कि अपना जो रूलिंग था वो बढ़ाते गए और उनको तो क्या चाहिए था? पैसा ही पैसा. बढ़ी रहा है तो इनकम बढ़ाते ही गए अपने. धीरे धीरे राजा आते गए जाते गए, उनका काम वगैरह चालू रहता था.
फिर लोगों ने अपोज करना स्टार्ट किया कि टैक्स उनको भरना चाहिए। पहले तो देखो ऐसे था ना कि एक राजा गया, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो अलग थे, फिर दूसरा राजा है उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे गवर्नमेंट की तरह थोड़ी होता है चलो कि भाई रूल्स बना लिए तो बना लिए तो वही कंटिन्यू रहे। इसमें तो मोनार्की सिस्टम थी, और जैसे मोनार्की सिस्टम में तो कैसे हो कि न्यू किंग न्यू रूल्स। अभी एक किंग ने परमिशन दे भी दी हो कि विथआउट पेइंग टैक्स आप काम कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि बंगाल में उनको मिला कि विथआउट पेइंग टैक्स आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, औरंगजेब ने अलाउड वगैरह किया। बट वो तो उनकी थी, अब न्यू किंग आए तो उनको तो ऐसे नहीं समझ में आए, तो ऐसे क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर हुई। और ये मैंने आपको पहले भी ऑनलाइन लेक्चर, सॉरी नॉट इन ऑनलाइन लेक्चर, आई थिंक सो दिस वी हैड डन इन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑल्सो। आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, एंड ब्रिटिशर्स का जो पावर था वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था, एंड हम हारने लगे थे, और उनकी जो चीज़ें थी उसमें हमने उनको हामी भरनी पड़ रही थी। फाइन, फिर पहली लड़ाई क्या हुई, बैटल ऑफ प्लासी। अब सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal in the year 1756. The Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitor of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. There were frequent conflicts with the British merchant regarding payment of tax. When the British merchant failed to pay tax, which were applicable to the both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the tax as per the rules, and trade as per the terms and conditions. The provocations was enough for Siraj to opt for war, and he succeeded in expelling the British from Calcutta. The British counter attack under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah, with the promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. With the help of Robert Clive, defeated and murdered Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. Thus, this war is considered as to be the turning point in the history of India. देखो, सिराजुद्दौला जो थे उनको तो वैसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स वगैरह पे वगैरह कर नहीं रहे हैं और अपने हिसाब से सब चल रहे हैं, जबकि सिराजुद्दौला ने बोला कि जिस तरह से टर्म एंड कंडीशंस है उस हिसाब से ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बट ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, और सिराजुद्दौला को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स का एक यही पॉइंट चाहिए था कि वो उसके अगेंस्ट कर सके, और उन्होंने क्या किया, बैटल का बोल दिया। फाइन, एंड बैटल हुई भी, बट हुआ क्या कि एंड ही सक्सीड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता, वो सक्सीड भी हुए। बट फिर रॉबर्ट क्लाइव का टाइम आया, उस टाइम पे क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, उसी के सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे उनको क्या दिया, ब्राइब दी, और उनको ऐसे बोला कि अगर सिराजुद्दौला यहाँ की पोस्ट से निकल जाए तो मैं आपको नवाब ऑफ बंगाल बना दूंगा। तो वो कन्विंस्ड हो गया। ओब्वियसली अभी कोई भी कमांडर को हम बोलेंगे हम तुझे राजा बना देंगे तो उसको तो लालच आ ही जाएगी। ब्रिटिशर्स को तो यही चाहिए था, और उन्होंने तो पहले से ही देखा था कि यहाँ पे तो कोई किसी का नहीं है, सब यूनिटी में कोई है ही नहीं। ब्रिटिशर्स तो कैसे एक पावर बन गया है कि हमें पूरे इंडिया में से वेल्थ जो है पैसा है कैसे भी करके वहाँ से लेके अपने कंट्रीज़ में जाके उनको सेल करना है, और अपनी जो डिमांड्स है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है, जो इनकम है वो बढ़ानी है।
अगर ये सब चीज़ें हमारी यूनिटी में होती, हम तभी के तभी, जब जो शाहजहां थे उन्होंने क्या किया था कि भाई ये पोर्चुगीज़ को स्टार्टिंग में ही उनको जब पता चला था कि इनका रूल्स वगैरह बहुत चल रहा है तो उनको उनको हटा दिया था। तब कैसे उन्होंने उनको उनके साथ लड़ाई की थी और उनको हरा दिया था, बट तब तो उनकी स्टार्टिंग थी। पर अगर हमारे में यूनिटी होती, कोई ब्राइब वगैरह नहीं लेता, तो ब्रिटिश का जो ये रूल था वो इतना चलता नहीं। बट हुआ क्या, उल्टा। तो क्या हुआ कि उसने उसको, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ब्राइब दी, ठीक है ना, रिश्वत दी, एंड वो मान गया। अब उसको भी ऐसे सिर पे भूत सवार चढ़ा हो ना कि मुझे किंग बनना है, नवाब बनना है, तो उन्होंने भी यही किया और उन्होंने वो ब्राइब ले ली। और वो जो थे मीर जाफ़र, वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलके उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला को मरवा दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम धीरे धीरे काफ़ी जो बैटल्स थे वो जीत भी सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनके साथ मिलके ब्रिटिशर्स के साथ और उनको मरवा दिया। तो ये जो स्टार्टिंग थी ना, फर्स्ट बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, वो टर्निंग पॉइंट था अपनी हिस्ट्री में, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग बिगनिंग की थी कि भाई हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, उनके लिए उन्होंने लड़ाई की थी। नो डाउट वो सक्सेस नहीं हुए, बट फर्स्ट बैटल स्टार्ट हुई थी ब्रिटिशर्स और किंग के बीच में, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। अब ये बैटल के बारे में कि इसमें क्या था। जैसे ही आपको पता ही है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको प्रॉमिस किया था, मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब बनाने के लिए, तो उन्होंने वो किया भी। As promised, the East India Company appointed Mir Zafar as Nawab of Bengal. Robert Clive also went back to England. With the passage of time, Mir Zafar became hostile towards the British. The company decided to replace him with his son-in-law, Mir Qasim. Mir Qasim was an efficient, disciplined, and clever ruler. The problem arose between the Nawab and the company on account of non payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. He recognized his army along with the forces of Nawab Od, Sujauddaulah and the Mughal Emperor Shah Alam II. Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, and all of a sudden Bengal, Awadh and Mughal Empire was under their control. Robert Clive was sent to India to take control of this situation. That's how the East India Company, a trading company, merged as the political power in subcontinent of India. देखो, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था मीर जाफ़र को कि कैसे भी करके मैं तुझे नवाब ऑफ बंगाल का बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया भी, बट क्या हुआ, वो जो उनका था ना, ऐसे गुलाम बन के ही रह गया ब्रिटिशर्स का। जो वो बोलते थे वही वो हाँ करता था, वो नाम का किंग रह गया था। पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी निकलता था, वो कौन निकालता था, ब्रिटिश निकलता था। तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। फिर जैसे ही टाइम गया, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अभी ये जो है मीर कासिम जाफ़र, उनका हमें कोई काम वगैरह है नहीं, तो उन्होंने उसको रिप्लेस भी कर डाला और उसकी जगह पे मीर कासिम को ले लिया, क्योंकि वो तो किसी के नहीं हुए थे तो इनके क्या होंगे, ऐसे। तो उन्होंने यही किया। बट जो मीर कासिम थे ना, वो इफ़िशिएंट रूलर थे, क्लेवर रूलर थे, और उनको भी ये चीज़ नहीं समझ में आती थी कि ब्रिटिशर्स ट्रेड क्यों नहीं पे करते हैं। उनको ट्रेड पे करना चाहिए, जहाँ की ये यहाँ के लोकल लोग ट्रेड पे कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो सबके लिए कंपलसरी है। तो फिर से यही हुआ कि आमने सामने है,
जो मीर कासिम को यही चाहिए था कि ब्रिटिश पे करे, और ब्रिटिशर्स रेडी थे कि हम पे नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि वो भी आमने सामने है, फिर से बैटल हुई, और फिर उसमें वो जो मीर कासिम थे वो पकड़ा भी गए, फिर वो भाग भी गए, और फिर से उन्होंने क्या किया, भाग के दूसरे जो किंग थे उनकी हेल्प ली, और उन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्त आर्मी बनाई। उसमें कौन से थे किंग? नवाब ऑफ औध, सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्पर शाह आलम टू। ये तीनों से मिलके उन्होंने क्या किया, एक आर्मी स्ट्रॉन्ग बनाई। एंड फिर से कौन से ईयर में? इन द ईयर ऑफ 1764। इन द ईयर ऑफ 1764 वो फिर से मिले, एंड फिर से वॉर डिक्लेयर्ड हुई। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ब्रिटिश तब तक बहुत ही स्ट्रांग बन गए थे, उनकी आर्मी भी बहुत ही स्ट्रांग थी। तो ये जो तीनों किंग मिलके भी जो उन्होंने आर्मी बनाई थी और उन्होंने लड़ाई की थी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग इतनी बन नहीं पाई, और वो लोग हार गए बैटल ऑफ बक्सर में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिशर की वो जीत गई। फिर हाथ से अवध भी गया, बंगाल भी गया, और मुगल एम्पर शाह आलम टू का भी सब कुछ गया। तो एक जगह पे तीन चीज़ें हमारी चली गई। बंगाल तो वैसे भी मीर कासिम के हाथ में था, वो भी गया। फिर अवध जो लखनऊ का था वो भी उनके हाथ से गया। उनका जो कंट्रोल था, उनकी जो पावर्स थी, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने उनसे साथ ले ली। ऐसे फिर क्या हुआ, धीरे 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 ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो क्या लगा, बढ़ने लगा। फाइन। तो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में ये पढ़ा कि कैसे पहले तो क्रिस्टोफर कोलंबस आए, उन्होंने क्या किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की, पर वो गलती से इंडिया की जगह वो कहाँ पहुँच गए, अमेरिका। फाइन। देन आफ्टर वास्को डी गामा ने इस्टाब्लिश्ड किया एंड सर्कल डिस्कवर्ड किया रूट ऑफ इंडिया। कौन सा ईयर था? 22 मई 1498। 22 मई 1498। फाइन। देन आफ्टर उन कौन से फर्स्ट किंग थे जिन्हों से उन्होंने परमिशन ली थी? तो जेमोरिन करके जो फर्स्ट किंग थे, उन्होंने उनसे परमिशन ली, और उन्होंने क्या किया, उनको ट्रेड करने का हाँ बोल दिया कि ठीक है तुम लोग ट्रेड कर सकते हो। फिर धीरे 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 पोर्चुगीज ने अपना क्या किया, जो ट्रेडिंग था वो इस्टाब्लिश करके गए। कहाँ कहाँ किया? मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई, वहाँ पे। ये पोर्चुगीज जो थे ना वो एंड तक रहे थे। जब हमें आज़ादी मिली थी ना, तभी भी दीव, दमन और गोवा जो थे ना वो उनके कंट्रोल में थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उन्होंने यूनियन बनाया था ना, इंडियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना, मैंने आपको चैप्टर बताया था, उसमें उन्होंने जो लोग थे ना, उन्होंने उनको बोला कि हमें भी इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना है, और फिर पोर्चुगीज़ ने तब छोड़ा था। ये एंड तक जब ब्रिटिशर्स थे तब भी, उनके बाद भी ये लोग जो थे ना वहाँ पे अड़े हुए थे, उन्होंने ये चीज़ें नहीं छोड़ी थी अपने। फिर इंडियन यूनियन के साथ आंदोलन, ये जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इनके साथ आंदोलन किया। फिर इंडियन यूनियन जो लोग थे उनके साथ उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने क्या बोला, पोर्चुगीज़ ने तभी भी क्या बोला था कि हम ना आपको 2-3 चीज़ें देते हैं, 3-4 गोवा, दीव, दमन हमारे पास रहने दो। फिर वो नहीं माने, और लास्ट में पोर्चुगीज़ को लगा ना कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। देन आफ्टर उन्होंने सरेंडर किया था और ये चीज़ें हमें दी थी। एंड तक ये चीज़ चली थी, पोर्चुगीज़ ने ये नहीं दी थी ऐसे। फिर एंड पोर्चुगीज़ का रूल पता है कैसे हुआ? जैसे ही शाहजहां को पता चला, समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उनकी सारी जो चीज़ें थी वो बर्न करवा दी, और एंड क्या हो गया था, उनका रूल हुआ था। देखो यहाँ पे है, एक्सेप्ट द दीव, दमन एंड गोवा, ये जो तीन थी ना उन्होंने तभी भी नहीं दी थी ऐसे। फिर क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश ट्रेड ऑफ बंगाल चला। देन आफ्टर डच जो थे वो आए, उन्होंने कैसे अपना एक्सपांड किया पूरा। देन आफ्टर ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फ्रेंच का पढ़ा, फ्रेंच ने जो द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की उसके बारे में पढ़ा।
ठीक है। फिर कौन क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुए और बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ बक्सर कौन था स्टार्टिंग में, तो सिराजुद्दौला, और उनके जो की चीफ कमांडर जो थे कौन थे, तो मीर कासिम थे, मीर जफ़र थे सॉरी, उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, उन्होंने ब्राइब ली और उनको मरवा दिया। देन आफ्टर फिर से जो मीर कासिम थे वो क्या बन के रह गए, हॉस्टाइल ही बन के रह गए थे। फिर सॉरी मीर जफ़र जो थे हॉस्टाइल बन के रह गए थे और मीर कासिम आए और उन्होंने रूल किया, और उनको भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी विथआउट पेइंग ट्रेड टैक्स की, तो उनके साथ लड़ाई की और ये सब किया, बट वो सक्सेस नहीं हुए। इस तरह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स आए और ट्रेडिंग करते करते अपना पाँव रख दिया था। नेक्स्ट चैप्टर में हम उनके ट्रेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।